Name CA Rohit Grover. So today again we came up with a new video on the topic called portfolio analysis. Right or not, portfolio analysis, one of the very important topic in our CA Inter examinations under the subject called strategic management. Strategic management में एक chapter है called strategic analysis. In the strategic analysis, there's one very important topic called portfolio analysis. So we have to understand today what are the aspects relating to the portfolio analysis. Basically, portfolio analysis होता क्या है? What are the advantages of the portfolio analysis? What are the prerequisites of the portfolio analysis? And what are the various matrices which are included in the portfolio analysis? So we'll divide this portfolio analysis into two parts. So today is going to be the part one, and tomorrow I'm going to upload the part 2 as well for portfolio analysis. So let us start. So again, a brief introduction of mine. I am C. Rohit Grover, a practicing chartered accountant as well as the faculty of intermediate audit and intermediate law and intermediate strategic management and for CA final auditing subject. And these are my various credentials on which you can follow us. So my channel name, YouTube channel name is Grover Audit and Law CA Classes. YouTube channel is there. You can also log in and join my Telegram group where I'll be keep on uploading my various PDFs of the materials, and Facebook where you can follow, that is Rohit Grover. See Rohit Grover Facebook. So today's topic, again I'm repeating, today's topic is portfolio analysis. So without wasting the time, let us start with the topic called portfolio analysis. It's one of the very important topic of your chapter called strategic analysis, and it is applicable for both CA IPCC old syllabus as well as the CA intermediate new syllabus. So let us start today's topic. So आज के टॉपिक का नाम क्या है? आज के टॉपिक का नाम है पोर्टफोलियो एनालिसिस. पोर्टफोलियो एनालिसिस. क्या होता है पोर्टफोलियो एनालिसिस? व्हाट डू यू मीन बाय बेसिकली द पोर्टफोलियो एनालिसिस? जैसे से फॉर एग्जांपल अपन एग्जांपल लेते हैं, पहले इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड समझ लेते हैं. जैसे देर आर सम वेरियस conglomerate business groups in India. Conglomerate, you all know that conglomerate means what? A company having the diversified businesses in the different entities. So say for example जैसे टाटा है. Suppose we have one company called Tata Group. अपन टाटा ग्रुप की बात करते हैं. तो टाटा ग्रुप में there are so many multiple products they have. They are having multiple products. जैसे टाटा के मल्टीपल प्रोडक्ट्स की बात करें तो टाटा में टाइटन आता है एक ब्रांड, ठीक है, जो वॉचेस के लिए है. टाटा में तनिष्क आता है जो बेसिकली किसके लिए है? अपना ज्वेलरी के लिए. टाटा में टी आती है, ठीक है. तो टाटा इज इन्वॉल्व इन टू मल्टीपल प्रोडक्ट्स. टाटा इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन टू मल्टीपल सर्विसेज. टाटा इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन टू मल्टीपल सर्विसेज. तो टाटा के मल्टीपल सर्विसेज भी है, ठीक है. मल्टीपल सर्विसेज जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, कंसल्टेंसी सर्विसेज है, ठीक है. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज. देन वी हैव टाटा कैपिटल ऑल्सो. टाटा कैपिटल. देर आर सो मेनी ह्यूज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस. सो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल सर्विसेज हैं एंड मल्टीपल बिजनेसेस. टाटा के बहुत सारे मल्टीपल बिजनेसेस भी हैं. सो कैसे हैं मल्टीपल बिजनेसेस? से फॉर एग्जांपल टाटा के बहुत सारे बिजनेस. टाटा मोटर्स है, ठीक है, टाटा मोटर्स है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है. देन टाटा स्टील्स है, ठीक है ना, टाटा स्टील्स है. देन वी हैव इन द टाटा हैविंग अ जॉइंट वेंचर विद द एयर विस्तारा, एयर एशिया, ठीक है. तो दीज आर द वेरियस various things in which the Tata is involved into. Tata is involved into chemicals also. Tata is involved into so many areas. So those conglomerate business houses who are involved in multiple products, multiple services or multiple kind of businesses, for them those companies do what? These kind of companies, these kind of groups do what? They do the portfolio analysis. So why do they do the portfolio analysis? Portfolio means in their portfolio of the services, in the portfolio of their products and in the portfolio of their businesses, there are multiple businesses, there are multiple services, there are multiple products which they are into. But some products are very highly profitable in nature. Some products are very low, generating very low profits, or some products are loss making. So they have to identify various products, various multiple services and various multiple businesses in which they are going up and up and in which they are going down and down. It means they have to take a call what to continue, what to be discontinued.
Are you getting the point? For that reason, these big groups do what? Portfolio analysis. So basically, what is the idea behind the portfolio analysis? The idea behind the portfolio analysis to take two decisions: what to continue, and what to discontinue. What to continue and what to discontinue. अब say for example, टाइटन बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, प्रॉफिट्स दे रहा है, तनिष्क भी प्रॉफिट्स दे रहा है, सपोज टी लॉसेज में है, तो दे हैव टू डू दिस पोर्टफोलियो एनालिसिस कि भैया इन्वेस्टमेंट किस में ज़्यादा करें. शुड वी गो फॉर मोर इन्वेस्टमेंट इन टाइटन, शुड वी गो फॉर मोर इन्वेस्टमेंट इन तनिष्क, और शुड वी गो फॉर मोर इन्वेस्टमेंट इन टी. तो अब बताओ, शुड दे गो फॉर इन्वेस्टमेंट इन टी? नो, इट्स अ लॉस मेकिंग बिजनेस. ठीक है ना. तो स्लोली फेज आउट हो जाना चाहिए इन दीज काइंड ऑफ businesses. So portfolio analysis, what is basically a portfolio analysis? Portfolio analysis is all about analyzing the multiple services, multiple businesses and multiple products in which the group has entered into, what kind of businesses to be continued and what kind of businesses to be discontinued. That is the basic idea behind the portfolio analysis. तो जैसे टाटा ग्रुप में मल्टीपल सर्विसेज, मल्टीपल बिजनेस, मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, नॉट एवरी बिजनेस, एवरी सर्विस और एवरी प्रोडक्ट इज प्रॉफिट जनरेटिंग. तो अपने को मेन डिसीजन लेना रहता है. एज अ बिग ग्रुप यू हैव टू टेक अ डिसीजन वे टू इन्वेस्ट मोर, विच इज हाईली रिस्की, विच इज लेस रिस्की. तो दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर नथिंग बट द पार्ट एंड पार्सल ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस. राइट. सो दिस इज कॉल्ड द इंट्रोडक्शन कि बेसिकली पोर्टफोलियो एनालिसिस होता क्या है. पोर्टफोलियो एनालिसिस इज ऑल अबाउट making the choices like what to continue and what not to continue. Now let us understand the first thing. What is the first thing we are going to understand? What is the meaning of portfolio analysis? Portfolio होता क्या है? What is the basic idea behind portfolio analysis? तो point number 1, ये एक टेक्निक है. It's a technique by which strategist, जो कंपनी के स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, द स्ट्रेटेजिस्ट ऑफ द कंपनी will be able to take decisions, so it's a technique by which the strategist of the companies will be able to take the decisions in relation to different products they have launched, in relation to different services they are providing, in relation to different businesses they have entered into. तो basically ये एक टेक्निक है. It is a technique by which the strategist will be able to take a decision relating to their different products, different services and different businesses. Point number 2. Next क्या है? When an organization has multiple products oblique businesses oblique services, then it is known as portfolio of the organization. It is known as what? Portfolio of the organization. जैसे से फॉर एग्जांपल मैं स्टॉक मार्केट में डील करता हूँ. अब स्टॉक मार्केट में मेरे पास से फॉर एग्जांपल 100 शेयर्स रिलायंस के हैं, 100 शेयर्स मेरे पास टाटा के हैं, 100 शेयर्स विप्रो के हैं, 100 शेयर्स मेरे पास इन्फोसिस के हैं. तो ये मेरा पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स है, बिकॉज आई एम होल्डिंग द डिफरेंट शेयर्स ऑफ द डिफरेंट इंडस्ट्री. आर यू गेटिंग दैट? पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? इट्स अ क्लस्टर ऑफ, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल बिजनेसेस एंड मल्टीपल सर्विसेज. उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज पोर्टफोलियो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. राइट और नॉट? नाउ बेसिकली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो एनालिसिस करता कौन है? हु डज द पोर्टफोलियो? हु डज इट? It is a responsibility of whom? It is a responsibility of top level management. It is a responsibility of what? Top level management. तो ये corporate decision making होती है. तो basically इसे corporate decision making भी बोलते हैं. It's at corporate level, corporate decision making.
it's nowadays it is very becoming popular at the business level strategies also, but mostly who is involved in the portfolio analysis, आप रतन टाटा को देखना पड़ेगा कि in these multiple products, multiple services and multiple businesses, which one is going profitable, which one is going loss making. So basically Ratan Tata being a which person, top level management person, is basically involved in doing the portfolio analysis, right sir? Then point number 4, क्या है, those organizations having multiple products and services, or having multiple what, businesses, must conduct such analysis, so that following decisions can be taken. So that what can be taken, following decisions can be taken. कौन से decisions sir? What to be continued. Decision number 1 is what to be continued, means what, which businesses, products or services to be continued. And what is the second decision? Rightly guessed, what to be discontinued. What to be continued, what to be discontinued. ठीक है सर? सो ये हो गया अपना क्या, ये हो गया मीनिंग ऑफ व्हाट, पोर्टफोलियो एनालिसिस. तो बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस? द मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट इज अ टेक्निक सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट इज अ टेक्निक. उसके बाद टेक्निक विच विल बी यूज्ड बाय whom, स्ट्रैटेजिस्ट. ठीक है सर? For those kind of organizations which are dealing in different products, different services, different businesses. Second thing, every organization which is having multiple products and multiple businesses or multiple services, that is known as their what, portfolio. Are you getting the point? Next thing, who does it always, who is involved? Top level management is involved. ठीक है? And then what is the next point? Those organizations which are dealing with the multiple products and multiple services and businesses must conduct what, such analysis to take the following decision. Decision number 1, what to be continued. Decision number 2, what to be discontinued. This is what the, broadly speaking, the meaning of the term called what, portfolio analysis. इसका मतलब होता है portfolio analysis. अब next thing what we have to understand, next thing is very important. अपने को क्या समझना है कि sir what are the advantages of what are the advantages of portfolio analysis. अपने को portfolio analysis के advantages क्या हैं? तो देखा जाए तो इसके main, broadly speaking, there are two advantages. Broadly speaking, there are two advantages of the portfolio management. Sir, advantage number 1 क्या है? Advantage number 1 क्या है? It helps in what? Understanding. It helps in understanding what to continue, and what to discontinue. तो ये अपने को पहला एडवांटेज क्या देता है कि ये अपने को डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करता है. इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट टू कंटिन्यू एंड व्हाट टू discontinue. And it also helps in taking a call. It also helps in taking a call that which businesses, products or services, are best suited. It also helps in understanding or taking a call that which businesses, products and services are best suited as per the strengths, strengths of the company. It also helps in understanding or taking a call that which businesses, which products and services are best suited as per the strengths of the company. Say for example, जैसे टाटा है, टाटा ने टॉमको कंपनी थी एक, टाटा ऑयल एंड मिनरल्स कंपनी लिमिटेड. नाउ इट वाज नॉट रनिंग सक्सेसफुली. इन दैट केस टाटा ने बिजनेस में डिसीजन लिया कि भाई केमिकल थिंग इज नॉट आवर फॉर्टे, वी आर नॉट गुड इन केमिकल प्रोडक्ट. तो टाटा ने क्या किया, गिव अवे कर दिया. किसको दे दिया था? टाटा डिड व्हाट, टाटा डिड द डाइवेस्टमेंट इन दैट थिंग एंड दे सोल्ड दिस पर्टिकुलर कंपनी कॉल्ड टोमको टू द हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड. लाइक पॉन्ड्स, लैक्मे, दीज आर द ब्रांड्स ऑफ टाटा. दे सोल्ड इट टू
हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो टाटा को अपने आप ही डिसीजन, पोर्टफोलियो एनालिसिस विल हेल्प द टाटा ग्रुप to take a decision कि which businesses, which products and which services are what best suited as per what strengths of the company. So basically there are two advantages of the portfolio analysis. It helps in understanding what to continue, what not to continue, and it also helps in taking a decision कि which businesses, which products, which services are best suited as per what, as per the strengths of the कंपनी। ठीक है सर, तो ये हो गया अपना मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस और ये हो गया अपने एडवांटेजेस ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस। बट सर पोर्टफोलियो एनालिसिस में देर आर टोटल 4 मैट्रिसेस। कौन से मैट्रिसेस हैं? अपने पास बीसीजी मैट्रिस है, अपने पास एडीएल मैट्रिस है, अपने पास एनसॉफ मैट्रिस है, अपने पास एक फोर्थ है जीई मैट्रिक्स। ठीक है, बट वो मैट्रिसेस आर द अल्टीमेट थिंग व्हाट पोर्टफोलियो एनालिसिस इज ऑल अबाउट। सम मैट्रिसेस विल हेल्प यू इन टेकिंग द डिसीजंस, right or not, relating to the businesses. Some matrices will help you in taking the decisions relating to the products and services. Some matrices will help you in taking the decisions relating to the markets. So wo matrices are different, but before understanding the matrices of the portfolio analysis, we have to understand this topic, which is highly important topic. Name of the topic is known as, what is the name of the topic? Sir, name of the topic is known as prerequisites of what? Of portfolio analysis. Prerequisites of what? Portfolio analysis. Portfolio analysis समझने से पहले, before understanding what is portfolio analysis in detail, we have to understand first the 3 prerequisites of the portfolio analysis. उसका पहला prerequisite क्या है? SBU। सर SBU का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। इसका मतलब हर एक कंपनी को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, हर एक ग्रुप को अपने पहले स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट को आइडेंटिफाई करना होता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट प्री रिक्विजिट? द प्री रिक्विजिट इज नोन एज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। सेकेंड प्री रिक्विजिट इज नोन एज experience curve. What is the second prerequisite? It is known as what? Experience curve. Sir, experience curve इसको और भी बोलते हैं, it is also known as learning curve। ठीक है ना? तो ये कॉन्सेप्ट अपने को क्या बताएगा कि भैया in the initial stage of every business, our efforts will be more. Our efforts will go more and our knowledge will be less. But over a period of time, like say for example you are doing a job, अब तुम जॉब में first 1 or 2 years your efforts will be more to learn the job, to do the job, to prove your efficiency, to prove your performance, and you will start gathering the knowledge slowly. So efforts will be very much high, knowledge gathering will be very much slow, but over a period of time when you will gather the enough knowledge, then with that knowledge your efforts will start falling down। उसे हम लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस कर्व। ठीक है ना? जैसे से फॉर एग्जांपल अब टाटा ने नया बिजनेस स्टार्ट किया, से फॉर एग्जांपल टाटा टायर्स बनाने शुरू करे। अब टाटा टायर्स में हु इज द मार्केट प्लेयर? एमआरएफ इज द मार्केट प्लेयर। ठीक है, अपोलो इज द मार्केट प्लेयर। अब टाटा हैज रिसेंटली एंटर्ड इनटू अ टायर बिजनेस। अब जब टाटा टायर बिजनेस में एंटर हुई तो शुरू में इट विल टेक टाइम फॉर द टाटा ग्रुप टू अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ कॉस्ट पर यूनिट इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर अ पर्टिकुलर टायर। तो मे बी इन द बिगिनिंग ऑफ द टाटा टायर्स देयर एफर्ट्स विल बी हायर, but once they will acquire the knowledge of this industry called tire manufacturing industry, slowly they will come in competition with the MRF and Apollo. So because they have to unseat the dominant player, so in that case they have to have the knowledge of experience curve. So that we'll understand in detail experience curve। और अपना थर्ड टॉपिक क्या है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। What is the name of the topic? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सर तीनों का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा बिजनेस यूनिट जिसके खुद के अपने कॉम्पिटिटर्स हैं, इट इज हैविंग इट्स ओन कॉम्पिटिटर। एक्सपीरियंस का क्या होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम योर एफर्ट शुड रिड्यूस एंड योर नॉलेज शुड हेल्प यू इन इंक्रीजिंग द बिजनेस। और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है कि एवरी प्रोडक्ट, जैसे अपना ओरिजिनल अपनी नेचुरल लाइफ ले लो, हम लोग बचपन से जाते हैं, तो बचपन होता है अपना इंट्रोडक्शन स्टेज। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्लोली ग्रो होते हैं अप टू द एज ऑफ 18। ग्रो होने के बाद हम लोग 20 क्रॉस होते ही
थोड़ा हम लोग मेच्योरिटी के लेवल पे आ जाते हैं, और जैसे हम 35 40 45 क्रॉस करते हैं तो हमारा डिमिनिशिंग एजिंग शुरू हो जाती है। तो बेसिकली सेम ऐसे ही होता है कि एनी प्रोडक्ट विच गेट्स इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट, विच गेट्स इंट्रोड्यूस्ड इन द businesses, have to pass through 4 stages of cycle. There are 4 stages or 4 stages of cycle through which that product has to pass through. तो अभी हम इसे इस डिस्कशन को अनदर लेवल पे लेके जाएंगे. विल डिस्कस इट इन डिटेल, because these are the 3 prerequisites. तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द पोर्टफोलियो एनालिसिस, you have to first understand what do you mean by strategic business unit. Then you have to understand what do you mean by experience curve, and then also you have to understand what do you mean by product life cycle. So let us start with the first thing without wasting our time. That is the first thing we have to understand, that is known as strategic business unit. Strategic business unit, basically strategic business unit जिसे हम SBU भी बोलते हैं, ठीक है ना. तो बेसिकली ये होता क्या है? स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट का मतलब क्या होता है? जैसे से फॉर एग्जांपल, अभी मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ. जैसे आईसीआईसीआई ग्रुप है, आईसीआईसीआई ग्रुप है, ठीक है. नाउ इन द आईसीआईसीआई ग्रुप, आईसीआईसीआई बैंक इज ऑल्सो देयर, ठीक है. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इज ऑल्सो देयर, ठीक है. प्रूडेंशियल इज फॉर लाइफ इंश्योरेंस. आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड इज ऑल्सो देयर, लॉम्बार्ड इज ऑल्सो देयर, ठीक है. और फिर अपना आईसीआईसीआई डायरेक्ट इज ऑल्सो देयर. अब मैं तुम्हें बताता हूं कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि आउट ऑफ दिस टोटल ग्रुप ऑफ आईसीआईसीआई विच वन इज अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, विच वन इज नॉट. अब देखो, अब जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ आईसीआईसीआई बैंक. अब आईसीआईसीआई बैंक के स्ट्रेटेजिक यूनिट बताओ मेरे को. आईसीआईसीआई बैंक के कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में? आईसीआईसीआई का कॉम्पिटिटर है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई का कॉम्पिटिटर है एसबीआई बैंक, आईसीआईसीआई का कॉम्पिटिटर है एक्सिस बैंक, ठीक है ना. तो दीज आर द कॉम्पिटिटर्स ऑफ आईसीआईसीआई. तो हम लोग आईसीआईसीआई बैंक को स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट विल कॉल इट एज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट. तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का मतलब क्या होता है? इट इज दैट बिजनेस यूनिट विच इज हैविंग इट्स ओन सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स. अगर तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स भी हैं मार्केट में, यू आर अ बिजनेस यूनिट ऑफ अ आईसीआईसीआई ग्रुप ऑफ कंपनीज, बट अंडर दैट डू यू हैव योर ओन सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स. तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? दे आर नोन एज सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स. उनके मार्केट में सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स है या नहीं है? है. सेम इज अ केस. अब तुम मुझे बताओ, आईसीआईसीआई डायरेक्ट के कॉम्पिटिटर्स बताओ. Anyone who is having the knowledge of market, stock market, they might be aware that ICICI Direct is basically involved into DMAT services. तो ICICI Direct के competitors भी मैं आपको बताता हूँ. Who are the competitors of ICICI Direct? ICICI Direct के competitors है, एक है अपना मोतीलाल ओसवाल करके कंपनी है, and the second company is Angel Broking. बहुत सारे हैं. We have Kotak Securities, Kotak Securities. तो इसका मतलब ICICI Direct is also having its own set of competitors. तो इसका मतलब ICICI Direct is also a strategic business unit, ठीक है ना. अब जैसे ICICI लॉम्बार्ड है, ये मोटर इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस कंपनी है. ICICI प्रूडेंशियल है, ये कौन सी कंपनी है? ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. आप सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बताओ ICICI प्रूडेंशियल का? LIC है, ठीक है. एंड ऑल द कंपनीज जैसे HDFC अर्गो है, अर्गो है, राइट नो, अपोलो म्यूनिक है, अपोलो म्यूनिक है. ये सारे किसके कॉम्पिटिटर्स हैं? ये सारे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के. तो आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एंड आईसीआईसीआई डायरेक्ट ऑफ आईसीआईसीआई ग्रुप, दे ऑल इंडिविजुअली, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, प्रूडेंशियल एंड बैंक, दे आर नोन एज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स. ये सबको हम लोग क्या बोलेंगे? दे आर नोन एज व्हाट? स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट. क्यों स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट? क्योंकि स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का मतलब क्या होता है? अब सुनना ध्यान से. व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट? इसको ध्यान से सुनना. SBU मीन्स व्हाट? SBU मीन्स अ बिजनेस यूनिट. SBU means a business unit. It is a business unit in a group having its, ये अपन लिखेंगे
own, इसको इन्वर्टेड कॉमा में, having its own what, own set of competitors, having its own set of competitors, having its own planning process, having its own planning process, having its own vision, mission and purpose, having its own vision, mission and purpose, and having its own what sir, having its own मैनेजमेंट, मतलब इसका खुद का सीईओ, सीएफओ, एमडी, हैविंग इट्स ओन सीईओ, सीएफओ. नाउ सी, आईसीआईसीआई ग्रुप में आईसीआईसीआई बैंक का सीईओ इज डिफरेंट फ्रॉम द सीईओ ऑफ द आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, इज डिफरेंट फ्रॉम द सीईओ ऑफ द आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एंड इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम द सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई डायरेक्ट. तो सबके आईसीआईसीआई बैंक के, डायरेक्ट के, प्रूडेंशियल के, लोम्बार्ड के अपने अपने सीईओज है, अपना अपना मैनेजमेंट है. तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का मतलब क्या होता है, दैट बिजनेस यूनिट जिसका अपना खुद का सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स हैं, जिसके अपने खुद के सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स हैं, जिसका अपना खुद का सेट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस है, जिसका अपना खुद का विजन है, मिशन है, पर्पस है, और जिसका अपना खुद का क्या है, ओन मैनेजमेंट है. ठीक है ना, दैट इज नोन एज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट. अब समझ में आया सर कि अपने पूरे ग्रुप में स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट इन द फॉलोइंग डिफरेंट वेज. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हैविंग इट्स ओन सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स, देन यू आर अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, और यू आर हैविंग योर ओन प्लानिंग प्रोसेस, यू आर हैविंग योर ओन विजन, मिशन, पर्पस, यू आर हैविंग ओन मैनेजमेंट. अब देखो, आईसीआईसीआई बैंक का खुद का अपना विजन है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का डिफरेंट विजन है, लोम्बार्ड का डिफरेंट विजन है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट का डिफरेंट विजन है. आईसीआईसीआई बैंक का खुद का प्लानिंग प्रोसेस है, लोम्बार्ड का डिफरेंट है, डायरेक्ट का डिफरेंट है, prudential is having its own. So strategic business means which is having its own set of competitors, planning process, vision, mission and purpose, and own management control. ठीक है सर. So that brings an end to the first prerequisite. The first prerequisite we are done with, that is known as what, strategic business यूनिट. ठीक है, अभी अपन मूव करेंगे सेकेंड बिजनेस यूनिट पे, सेकेंड प्री रिक्विजिट विच इज नोन एज एक्सपीरियंस कर्व. सर नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू लर्न इज नोन एज, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपीरियंस कर्व, एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, लर्निंग कर्व. लर्निंग कर्व, एक्सपीरियंस कर्व एंड ऑल्सो नोन एज व्हाट, लर्निंग कर्व. ठीक है सर. तो ये हो गया अपना स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, ये हो गया अपना सेकेंड वन एक्सपीरियंस कर्व विच इज़ ऑल्सो नोन एज लर्निंग कर्व. अब सुनो, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. इसे अपन कैसे समझेंगे, इसे अपन समझेंगे एक डायग्राम के अकॉर्डिंग. नाउ सी, ये है से फॉर एग्जांपल, ये हो गया अपनी वाई एक्सिस और ये हो गया अपना एक्स एक्सिस. ठीक है, तो ये हो गया अपनी वाई एक्सिस और ये हो गया अपना एक्स एक्सिस. ठीक है, तो let me tell you, on the y axis let us put up efforts on the y axis. So on the x axis let us put the knowledge. ठीक है, now understand that कि whenever you start a new business, whenever you start a new service or new product in the market, to make that product successful, to make that business successful, to make that service successful, in the beginning, in the very beginning, your efforts will be going up and up and up. After few some time period, your efforts will come down and down and down. So basically this is called bell shaped curve. This is called what, bell shaped curve. बेल शेप्ड कर्व का मतलब क्या होता है, अब देखो, लेट्स डिवाइड इट इनटू 4 ईयर्स. ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ये फोर्थ ईयर, ये फिफ्थ ईयर. ठीक है, अब देखो, फर्स्ट ईयर में एफर्ट्स आर मोर, नॉलेज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. सेकेंड ईयर में योर एफर्ट्स आर गोइंग अप. इन द सेकेंड ईयर योर एफर्ट फ्रॉम हियर टू हियर, you can see that this particular line, your efforts are increasing like anything. Are you getting the point? Because you have to prove your product in the market, you have to prove your services in the market, business in the market over a period of time. over यहाँ पे effort ऐसा जा रहा था, यहाँ पे बिल्कुल steep हो गया. Over a period of time you will gain some knowledge, experience from the market. It means you will become matured. इसका मतलब तुम्हारे effort constant हो गए. And
after few years, what will happen after few years? What will happen sir after few years? After few years अपन यहाँ पे एक डॉट लगाते हैं, एक ये इसके अकॉर्डिंग. आफ्टर फ्यू ईयर्स क्या हो गया? आफ्टर फ्यू ईयर्स योर एफर्ट्स विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन. एंड लेट मी आस्क यू वन थिंग. सो से दिस वे, अब देखो फ्रॉम, अच्छा ये कैन आई से दैट फ्रॉम ईयर नंबर 1 to year number 3 your efforts were more and knowledge was less. ठीक है ना? अब but from the year number 3 to year number 5 what has happened? From the year number 3 to year number 5 what has happened? Your efforts steeply went down because your knowledge was more. So can I say that कि when a person does any kind of activity in the very beginning, right or not, in a very beginning, अब जैसे PUBG game है, अब PUBG game में we have to learn the game first, we have to learn the rules of the game first. तो शुरू का 1 month when you start playing the PUBG, तो तुम्हारे efforts will be more. Are you getting the point? How to use the scope, how to see the zone, how to see the map, how to see the enemies, how to bend down and getting up and all, because you have a less knowledge. But over a period of time, when 5-6 months will be over, when you are dealing very good with the PUBG game, then over a period of time your efforts will be less in killing your enemy because you gathered a more and more नॉलेज. तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एक्सपीरियंस कर्व. तो एक्सपीरियंस कर्व का बेसिकली मतलब क्या होता है? इन द बिगिनिंग, इन द स्टार्टिंग ईयर्स योर एफर्ट्स विल बी मोर, वेयर एज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम योर एफर्ट्स विल रिड्यूस बिकॉज यू हैव गैदर्ड अ लॉट ऑफ नॉलेज. आई होप दिस बेल शेप्ड डायग्राम माइट हैव मेड यू अंडरस्टैंड कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड व्हाट? एक्सपीरियंस कर्व. तो अपन लिख लेते हैं एक्सपीरियंस कर्व का मतलब क्या होता है? इट्स अ कॉन्सेप्ट बाय विच one can understand, by which one can understand what he can understand, that in the initial years of running a business, in the initial year of running the business, efforts will be more, and acquisition of knowledge will be increasing but at low pace, but at low speed. ये होगा पॉइंट नंबर 1. ठीक है. पॉइंट नंबर 2 क्या है? whereas after some years what will happen? Efforts will be reduced due to massive acquisition of what? Knowledge. Right or not? So this is what do you mean by this concept of experience curve. तो experience curve का मतलब क्या होता है? Starting में your efforts are more, knowledge is less, and later on your efforts will be less and the knowledge will be more. This is what do you mean by the concept of what? Experience curve. ये अपना था second prerequisite of what? Portfolio analysis. अब let us understand the last thing. What is the last thing for today's class? Let us understand the third prerequisite. So part 1 is going to get over, guys. So after that, tomorrow or day after tomorrow, when the strategic management video will be uploaded, so part 2 again I will upload on BCG matrix. I'll upload it on ADL, ANSOF and GE matrices of portfolio analysis. तो हम लोग पूरा टॉपिक ही portfolio analysis का खत्म कर देंगे. ठीक है. तो what is the third thing we have to understand now? What is the third thing we have to understand? The third thing is known as, so second thing we have already understood what? We have understood the second thing. What is the second thing we have understood? We have understood the experience curve. Right or not? We have already understood what? Experience curve. उससे पहले हमने क्या understand किया? We understood what? Strategic business unit. ठीक है. अभी अपन third thing क्या understand करेंगे? We are going to understand what? This thing called what? Product life cycle. What is the name of the topic? Product life cycle. तो product life cycle का मतलब क्या होता है कि every product
in the market, every product in the market has to pass through, I'm saying has to pass through the following फोर स्टेजेस, हैज़ टू पास थ्रू द फॉलोइंग फोर स्टेजेस. सर वो कौन सी स्टेजेस होती हैं विच द प्रोडक्ट हैज़ टू पास थ्रू? सो एवरी प्रोडक्ट इन द मार्केट हैज़ टू पास थ्रू द फॉलोइंग फोर स्टेजेस. व्हाट आर दोज फोर स्टेजेस? ये हैं अपनी फोर स्टेजेस. सर कौन सी फोर स्टेज? नंबर वन इज नोन एज इंट्रोडक्शन स्टेज. What is the name of the stage number one? Introduction stage. So stage number two is known as growth stage. अपन एग्जाम्पल भी करेंगे, पहले समझेंगे फिर एग्जाम्पल. स्टेज नंबर 3 is known as maturity stage and stage number 4 is known as declining stage. ठीक है ना? तो फर्स्ट स्टेज इज नोन एज what is the name of the first stage? First stage is known as introduction stage. Second one is known as growth stage. Third one is known as maturity stage. Fourth one is known as declining stage. And let me tell you guys, every product introduced in the market has to pass through this product life cycle. तो product life cycle के stages I to D हैं. टोटल फोर स्टेजेस है, इंट्रोडक्शन से लेके, ग्रोथ से लेके, मैच्योरिटी से लेके डिक्लाइनिंग स्टेज. तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. ठीक है. नाउ क्या मतलब हुआ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का? इट्स मतलब इंट्रोडक्शन स्टेज क्या होती है? जैसे से फॉर एग्जांपल हम लोग कंप्यूटर्स की बात करते हैं. सबसे पहले जब कंप्यूटर्स आए थे, द फर्स्ट टाइम व्हेन वी सॉ द कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर्स में फर्स्ट टाइम क्या हुआ था? व्हेन द फर्स्ट टाइम कंप्यूटर्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. नाउ टेल मी व्हाट हैपेंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. So at that point of time, introduction stage of every product indicates what? It indicates what? Point number one, slow growth. It indicates what? Slow sales growth. क्योंकि अभी product has been recently introduced, so customers are not aware of, so there will be slow sales growth, big, and there will be less number of sellers. जैसे कंप्यूटर, when the computers were introduced back in 90s or 95 or late 90s or late 2000 अपने इंडिया में, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सो स्लो सेल्स ऑफ ग्रोथ था बिकॉज दे वर क्वाइट एक्सपेंसिव एंड देर वर वेरी फ्यू लेस नंबर ऑफ सेलर्स वर देयर. दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन से. ड्यू टू ये क्यों हुआ? वाई स्लो सेल्स ग्रोथ एंड वाई लेस नंबर ऑफ सेलर्स? ड्यू टू लेस अवेयरनेस. ड्यू टू व्हाट? लेस अवेयरनेस. Among whom? Among customers. Among what? Customers. That is known as introduction stage of what? Introduction stage of what? Product life cycle. कोई भी प्रोडक्ट हो, इसकी फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है? इंट्रोडक्शन स्टेज. अच्छा सर, व्हाट इज द स्टेज नंबर 2? स्टेज नंबर 2 क्या है? ग्रोथ. ग्रोथ में क्या है? ग्रोथ स्टेज में व्हाट डज इट इंडिकेट्स? Growth means what? From the name itself only you can tell me there will be a rapid increase in sales volume. Sales volume suddenly increase होना शुरू हो जाएंगे. Why? Because now due to more awareness among whom? Among customers. Due to the more awareness among what? Customers. एंड ड्यू टू द मोर नंबर ऑफ सेलर्स. क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा, मोर नंबर ऑफ सेलर्स आ जाएंगे व्हेन दे विल सी द प्रॉफिटेबिलिटी. एंड ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू प्राइस वॉर. ड्यू टू द प्राइस वॉर, हर कोई प्राइस वॉर में लग जाएगा. एंड ड्यू टू दैट द सेल्स विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड कीप ऑन इंक्रीजिंग. दैट इज कॉल्ड विच स्टेज? उसे बोलते हैं हम लोग ग्रोथ स्टेज. ठीक है. फिर फोर्थ स्टेज, फिर अपनी थर्ड स्टेज का नाम क्या है? थर्ड स्टेज का नाम क्या है? इसका नाम है मैच्योरिटी. मैच्योरिटी का मतलब क्या हुआ? ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी. वेदर द सेल्स विल बी टू हाई, इट विल बी रैपिडली इंक्रीजिंग और इट विल स्टेबलाइज. सो यस, तो व्हाट डज दैट इंडिकेट्स? व्हाट इज अ मैच्योरिटी स्टेज इंडिकेटिंग? मैच्योरिटी स्टेज क्या इंडिकेट करती है? प्रोडक्ट स्टेबलाइजेस, सेल्स stabilizes, क्योंकि it has reached to its which stage? Maturity stage. तो maturity stage में product stabilizes, sales stabilizes and growth what? Growth is very slow. यहाँ पे होती है ग्रोथ
बट आई एम नॉट सेइंग ग्रोथ इज नॉट देयर, ग्रोथ इज वेरी वेरी स्लो, क्योंकि मेच्योरिटी स्टेज हो गई है। अब देखो धीरे धीरे, अब लेट मी टेल यू वन थिंग, कंप्यूटर्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड, तो इंट्रोड्यूस में स्लो सेल्स, लेस नंबर ऑफ सेलर्स ड्यू टू लेस अवेयरनेस अमंग द कस्टमर्स, सो इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव एंड पीपल वर वेरी लेस अवेयर अबाउट द कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स का इंट्रोडक्शन स्टेज, उसके बाद पीपल स्टार्टेड कमिंग टू नो अबाउट द कंप्यूटर्स कि हाउ कंप्यूटर्स आर रिड्यूसिंग द एफर्ट्स। तो हम लोग इंट्रोडक्शन स्टेज से, फ्रॉम इंट्रोडक्शन स्टेज से हमें कौन सी स्टेज आई, ग्रोथ स्टेज आई। ठीक है, ग्रोथ में क्या हुआ, रैपिड इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम हुआ, मोर अवेयरनेस अमंग द कस्टमर्स हुई, मोर नंबर ऑफ सेलर्स आया, प्राइस वॉर आया। अब क्या हुआ, अब कंप्यूटर्स इन द थर्ड स्टेज, इन द मेच्योरिटी स्टेज क्या हुआ, कंप्यूटर्स आर नाउ स्लोली स्लोली गेटिंग रिप्लेस्ड बाय व्हाट, लैपटॉप्स। लैपटॉप्स आ गए, ठीक है, पैड्स आ गए, ठीक है, कंप्यूटर्स आर गेटिंग स्लोअर सेल्स, वाई, बिकॉज लैपटॉप्स एंड पैड्स हैव टेकन ओवर द मार्केट। तो कंप्यूटर्स की स्टेज क्या होगी, मेच्योरिटी होगी। तो मेच्योरिटी में कंप्यूटर का जो प्रोडक्ट है वो हो गया स्टेबलाइजेज, स्टेल होगी, स्टेबलाइजेज। ग्रोथ क्या हो गया, ग्रोथ इज ऑल्सो वेरी स्लो, वाई, because laptops and pads, iPads, all those other Samsung tabs and all, they have taken over the market of what, computer. So that is called here. So growth sales, and what do we happen, growth sales, sales stabilizes, product stabilizes, growth is very slow. Why? Due to new products, due to what, new products and techniques introduction, due to new products and techniques इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट, इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट। ठीक है ना सर, क्योंकि सारे न्यू प्रोडक्ट्स आ गए मार्केट में, दैट्स द रीज़न द ओल्ड कंप्यूटर स्टार्टेड गेटिंग वेरी लेस सेल्स। अब इसके बाद अपनी स्टेज आई, स्टेज नंबर 4। सर व्हाट इज स्टेज नंबर 4, स्टेज नंबर 4 आप बताओ। कंप्यूटर्स का स्टेल ऑलरेडी स्टेबलाइज हो चुका है एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। अब स्टेज नंबर 4 में क्या होगा, स्टेज नंबर 4 में क्या होगा, स्टेज नंबर 4 में ये होगा, क्या होगा सर, stage number 4 indicates what, increase in sales or complete lower sales. Now product loses its market, product loses its market, declining age चल रही है ना, old हो गया product, product loses its market due to stiff competition, due to which competition, stiff competition। बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गए, कितने ब्रांड्स आ गए टैब्स के, कितने ब्रांड्स आ गए लैपटॉप्स के, कितने ब्रांड्स आ गए पैड्स के। तो प्रोडक्ट सेल ऑफ द कंप्यूटर विल गो वेरी लेस, डिमिनिशिंग होनी शुरू हो जाएगी। वाई, बिकॉज ड्यू टू द स्टिफ कंपटीशन। एंड सेकेंड रीजन इज न्यू प्रोडक्ट, एंड थर्ड रीजन इज शिफ्ट ऑफ कस्टमर्स टेस्ट, शिफ्ट ऑफ हुज टेस्ट, कस्टमर्स टेस्ट। ठीक है, तो कस्टमर का टेस्ट भी तो शिफ्ट हो गया, क्योंकि लैपटॉप में भी अब क्या कंप्यूटर्स थे, कंप्यूटर्स में अपने को बड़ा सा सीपीयू लेना, मॉनिटर लेना, सो मेनी थिंग्स वी हैव टू, वायरिंग सिस्टम एंड ऑल। लैपटॉप क्या है, एक छोटा सा बक्सा, ओपन किया क्लोज किया। और टैब तो उससे भी आसान, टैब में तो क्या है, सिर्फ टच स्क्रीन आ गई। ठीक है ना, तो अभी भी अपन क्लास रिकॉर्डिंग टैब पे ही कर रहे हैं ना। वाई आई एम नॉट रिकॉर्डिंग इट ऑन लैपटॉप, क्योंकि लैपटॉप पे टच नहीं कर सकते, आते टच स्क्रीन वाले लैपटॉप भी आते हैं, बट टैब्स हैव टेकन ओवर द टच स्क्रीन। ठीक है ना, तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो बताओ सर जल्दी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में अपने कितने स्टेज होते हैं, 4 स्टेज होते हैं सर। इंट्रोडक्शन स्टेज होती है, ग्रोथ होती है, मेच्योरिटी होती है, डिक्लाइनिंग होती है। इंट्रोडक्शन में सेल्स लेस होती है बिकॉज ऑफ लेस अवेयरनेस अमंग द पीपल एंड लेस नंबर ऑफ सेलर्स। ग्रोथ में सेल्स बहुत ज़्यादा होती है ड्यू टू द मोर अवेयरनेस अमंग द कस्टमर्स एंड मोर नंबर ऑफ सेलर्स एंड प्राइस वॉर। मेच्योरिटी में आके प्रोडक्ट स्टेबलाइज हो जाती है, सेल्स स्टेबलाइज हो जाती है, ग्रोथ बहुत लेस होती है ड्यू टू द न्यू प्रोडक्ट्स कमिंग इन द मार्केट। और डिक्लाइनिंग स्टेज में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की जो मार्केट है वो लूज कर देता है अपनी मार्केट ड्यू टू द स्टिफ कॉम्पिटिशन, न्यू प्रोडक्ट्स आ जाते हैं एंड ड्यू टू द शिफ्ट ऑफ हुज टेस्ट, कस्टमर्स टेस्ट। तो एक काम करते हैं, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इसका, लेट्स सी अपने पास होगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अपने पास लेट्स सी अपने पास प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कुछ एग्जांपल मिल जाए तो, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का एग्जांपल, लेट मी सी, सो मेनी एग्जांपल्स वर देयर, लेट अस सी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल।
अभी आ जाएगा, ये आ गया अपना प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का एग्जांपल, ठीक है। इसे अपन क्या कर देते हैं, इंसर्ट करके इसे अपन नीचे पढ़ेंगे, ठीक है सर। ये आ गया अपना प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अभी तुम देखो, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज लाइक अ ट्री, ठीक है ना। पहली स्टेज कौन सी थी सर, जल्दी से बताएंगे एवरीवन। पहली स्टेज कौन सी थी, इंट्रोडक्शन स्टेज। उसके बाद कौन सी दिख रही है, ग्रोथ स्टेज। उसके बाद कौन सी दिख रही है, मैच्योरिटी स्टेज। उसके बाद क्या दिख रही है, डिक्लाइनिंग स्टेज। तो अपना भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का डायग्राम क्या बनेगा, डायग्राम तो ऐसे ही बनेगा ना। ये होगी अपनी एक्स एक्सिस और ये होगी अपनी वाई एक्सिस, ठीक है। ये होगी एक्स एक्सिस, ये होगी वाई एक्सिस। यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर से बेल शेप हुआ, यहाँ पे चला गया। तो ये वाली स्टेज तुम बोल दो कि इंट्रोडक्शन स्टेज है, ये वाली स्टेज तुम बोल दो कि ग्रोथ स्टेज है। ये थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, अपन स्टेबलाइज, पूरा स्टेबलाइज नहीं, ग्रोथ है बट बहुत स्लो है, इसे बोलते हैं मेच्योरिटी स्टेज। और ये होगी अपनी डिक्लाइनिंग, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्लाइनिंग स्टेज। तो ये अपने हो गए स्टेज के नाम। पहला हो गया इंट्रोडक्शन, फिर हो गया ग्रोथ, फिर हो गया मेच्योरिटी और फिर हो गया डिक्लाइनिंग, ठीक है सर। तो इसे बोलते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज, ये होगी अपनी ग्रोथ स्टेज, this is called maturity stage, and finally this is called what, डिक्लाइनिंग स्टेज। इसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। समझ में आया सर, दिस इज व्हाट डू मीन बाय प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो 4 स्टेज होगी, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डिक्लाइन, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेल्स, देखो अपना भी एक्स एक्सिस पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेल्स और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइम। वहाँ पे आ जाएगा सेल्स और वहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइम, ठीक है सर। सो यहाँ पे आ गया टाइम। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। और ऊपर अगर आपको इसका देखना है बेल शेप एक्सपीरियंस कर्व का, वो भी दिखा देते हैं। तो एक्सपीरियंस कर्व का भी एक डायग्राम डाल देंगे अपन, सो दैट अपने को समझ में आ जाए कि एक्सपीरियंस कर्व एक्चुअल में दिखती कैसी है। एक्सपीरियंस कर्व का डायग्राम है ये, ठीक है सर। ये हमने इंसर्ट कर दिया एक्सपीरियंस कर्व का डायग्राम, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे कर देंगे आंसर, ठीक है। तो अभी अपन इसे पढ़ लेते हैं। देखो एफर्ट कर्व ऑफ अ ट्रेडर, अभी देखो लो से हाई अपने एक्स वाई नॉलेज क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या जा रहा है, नॉलेज। हमने भी नॉलेज डाला था एक्स एक्सिस में, यहाँ पे क्या है, एफर्ट। तो हाई टू लो आ गया ये, फिर लो टू हाई आ गया ये। तो देखो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में क्या हो रहा है, यहाँ तक अपने एफर्ट इंक्रीज होते जा रहे हैं। और क्योंकि अपनी नॉलेज धीरे धीरे गैदर कर रहे हैं, उसके बाद जो सेकंड स्टेज है, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ अपने एफर्ट क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ये स्टेज है, इसे बोलते हैं एफर्ट्स मोर, नॉलेज लेस, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट स्टेज है, इसे हम लोग बोलेंगे एफर्ट्स लेस बिकॉज आवर नॉलेज इज मोर। इसे हम लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस का, ठीक है सर। तो दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय द वेरियस 3 प्री रिक्विजिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द विच एनालिसिस। इसे हम लोग बोलते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस के प्री रिक्विजिट्स। आई होप टुडेज क्लास, I hope it will be very useful to you. If you really like the video, please hit the like button, please hit the subscribe button. तो मैंने बहुत मेहनत करी है so that I can tell you in the best way. तो ये अपने credentials हैं, अपना चैनल का नाम है Grower Audit and Loss ये classes. Please hit the like and subscribe button for my channel and don't forget to press the bell icon, ठीक है ना, notifications के लिए, because if you will press that then only you will come to know that whenever the new topics will be uploaded. So I have recently uploaded inter audit videos also, you can watch it. I have uploaded inter law videos also, and I have today started in uploading the inter strategic management videos also. So these are the 3 steps, these are the 3 subjects which I take at the intermediate level. I hope today's class also you might have found it useful. तो हमने स्टार्ट किया था पोर्टफोलियो एनालिसिस का इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमने स्टार्ट किया मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था एडवांटेजेस ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस, देन वी अंडरस्टूड प्री रिक्विजिट्स ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस. व्हाट आर द 3 प्री रिक्विजिट्स वी हैव? The 3 prerequisites what we have is known as SBU, experience curve, product life cycle. I hope everyone understood. और next video में I'm going to come up, ये अपना strategic business unit, ये अपना experience curve आ गया,
और ये अपना आ गया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू कम अप विद ऑल ऑफ यू with the remaining parts of the product analysis where we will do the 4 matrices. BCG matrix करेंगे, Boston Consultancy Group, ADL, Arthur D Little का, और ANSOF का भी करेंगे, और फिर G जनरल इलेक्ट्रिक का. तो अपन that's it for today guys. So thank you so much for lending your patient ears again today. So I'll be uploading it now. So give your love and affection to this video as well, which you have given to the previous videos. So बहुत सारा love and affection मिल रहा है आपके like से, आपके सब्सक्राइब करने से. सो आई होप दिस विल बी ऑल्सो यूजफुल टू यू एज like earlier videos. So thank you so much again for lending your patient ears. I'll again borrow it tomorrow with a new topic of intermediate law. Tomorrow I'll come up with the intermediate law, and then day after tomorrow audit law SM, like that we'll be interchanging the videos. So that's it from my